फिर तो इस जीवन में जो कुछ किया उससे सब फजूल हो गया। पुरुष प्रकृति स्थोरी भुंक्ते प्रकृति जान गुणा। हाँ, भुंक्ते। हाँ, कारणम गुण सर्वस्व सरस्वत जननी जन्मसु। The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil amongst various species. Perfect. This verse is very important for an understanding of how the living entities transmigrate from one body to another. It is explained in the second chapter. The living entity is transmigrating from one body to another, just as one changes dress. This change of dress is due to his attachment to material existence. As long as he is captivated by this false manifestation, he has to continue transmigrating from one body to another. Due to his desire to lord it over material nature, he is put into such undesirable circumstances. Under the influence of material desire, the entity is born sometimes as a demigod, sometimes as a man, sometimes as a beast, as a bird, as a worm, as an aquatic, as a saintly man, as a bug. This is going on. And in all cases, the living entity thinks himself to be the master of his circumstances, yet he is under the influence of material nature. How he is put into such different bodies is explained here. It is due to association with the different modes of nature. One has to rise, therefore, above the three material modes and become situated in the transcendental position. That is called Krishna consciousness. Unless one is situated in Krishna consciousness, his material consciousness will oblige him to transfer from one body to another because he has material desires since time immemorial. But he has to change that conception. That change can be effected only by hearing from authoritative sources. The best example is here. Arjuna is hearing the science of God from Krishna. The living entity, if he submits to this hearing process, will lose his long-cherished desire to dominate material nature. And gradually and proportionately, as he reduces his long desire to dominate, he comes to enjoy spiritual happiness. In the Vedic mantra, it is said that as he becomes learned in association with the Supreme Personality of Godhead, he proportionately relishes his eternal blissful life. Purusha prakriti hi bhunkte prakriti jangunan karanam gunasangosya salasad-yoni janmasu. He is associated. Satagun Rajagun Tam. Urdham gachanti sattasva. Find out this one. Urdham gachanti sattasva. Madhye tishtanti rajasa. Jaganna gunavittista adho gachanti. How he can check if he is Jaganna gunavitti? So he is going downward. How his present position will check him. That is not what. Education. So our little endeavor is that we have got such a vast knowledge, treasure house of knowledge. And instead of distributing this, if we remain in the darkness, then what is the benefit? चैतन्य महाप्रभु का एक मिशन है, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा जन्म सार्थक करी करो करो परोपकार, क्योंकि सारा दुनिया डार्कनेस. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा. Translation. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on earthly planets. And those in the mode of ignorance go down to the hellish worlds. Purport. In this verse, the results of actions in the three modes of nature are more explicitly set forth. There is an upper planetary system consisting of the heavenly planets where everyone is highly elevated. According to the degree of development of the mode of goodness, the living entity can be transferred to various planets in this system.
The highest planet is Satyaloka or Brahmaloka, where the prime person of this universe, Lord Brahma, resides. We have seen already that we can hardly calculate the wondrous condition of life in Brahmaloka. But the highest condition of life, the mode of goodness, can bring us to this. The mode of passion is mixed. It is in the middle, between the modes of goodness and ignorance. A person is not always pure, but even if he should be purely in the mode of passion, he will simply remain on this earth as a king or a rich man. But because there are mixtures, one can also go down. People on this earth in the mode of passion or ignorance cannot forcibly approach the higher planets by machine. In the mode of passion, there is also a chance of becoming mad in the next life. The lowest quality, the mode of ignorance, is described here as abominable. The result of developing ignorance is very, very risky. It is the lowest quality in material nature. Beneath the human level, there are 8 million species of life, birds, beasts, reptiles, trees, etc. And according to the development of the mode of ignorance, people are brought down to these abominable conditions. The word tamasaha is very significant here. Tamasaha indicates those who stay continually in the mode of ignorance without rising to a higher mode. Their future is very dark. There is opportunity for man in the modes of ignorance and passion to be elevated to the mode of goodness, and that system is called Krishna consciousness. But one who does not take advantage of this opportunity certainly will continue in the lower modes. मैंने भागवत से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा. हाँ, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की ततो रजस्तमो भावा कामलो भागयश्चजे चेत एतै अनाविद्यम स्थितं सत्य प्रसीदति. तो आदमी को सतुगुण में ले आना चाहिए. दिस इज एजुकेशन. वो तमोगुण में ही रहेगा तो क्या है. जगन्ना गुण वित्तिष्ठ अधो गच्छन्ति. देहांत प्राप्ति तो है, और किस तरह से देहांत प्राप्ति होनी है उसको सिखाना चाहिए. उस विषय में सिखा कहाँ जाना, वो एजुकेशन कहाँ है. नहीं तो रिलीजन नहीं है, ये तो साइंस है. रिलीजन अभी बहुत दूर में है. ये तो देहांत पर जैसा एक इन्फेक्शन, क्या कोई बीमारी, स्मॉल पॉक्स, तुमको स्मॉल पॉक्स होना ही है. इससे रिलीजन क्या है, ये तो साइंस है. कारण गुण संग. तो स्मॉल पॉक्स डिजीज को इन्फेक्ट किया, अब तुमको स्मॉल पॉक्स भोगने पड़ेगा. इसमें रिलीजन की बात किया. रिलीजन तो बहुत, जब आदमी होगा तभी उसको रिलीजन. धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीत. जब भगवान से संपर्क होगा तभी रिलीजन है, नहीं तो रिलीजन क्या है. मनमाफिक रिलीजन होता है. धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीत. मनमाफिक लॉ होता है, नहीं. लॉ तो गवर्नमेंट देता है. इसी प्रकार रिलीजन का अर्थ होता है जो भगवान जो बता देते हैं उसका नाम है रिलीजन. इसीलिए भगवान बताए सर्वधर्मान परित्यज्य माम, दिस इज रिलीजन. And whatever you have manufactured, this is all bogus. Therefore, इसको त्याग दो. तो एक रिलीजन है, मामी तंग शरणं, उसका नाम है रिलीजन. तो ये रिलीजन लेता कौन, इसको भी बताया. नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ते न राधव माया पुरित ज्ञाना असुरी भावमान. ये जो भगवान बोल रहे हैं सरेंडर करो, तो भगवान बोलते हैं हमको सरेंडर करता नहीं. कौन? दुष्कृति न राघवा मूढ़ा माया पुरित ज्ञाना आसुरी भाव. तो फिर तो सब हो गया, खत्म. नहीं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धति. अनेक जन्म ऐसा घूमते फिरते जब वास्तविक ज्ञानवान होता है तब होता है.
क्योंकि वो समझ लेता है वासुदेव सरिनीति स महात्मा। तो जन्म तो होगा, ये तो तथा देहांतर प्राप्ति तो उनको सिखाना चाहिए। ये जन्म होने से जन्म तुमको मिला है, अब ये तुम ज्ञान लो, इस तरह से भगवान में प्रवृत्ति करो, इस तरह से जीवन को सफल करो। नहीं तो क्या है, हथौड़ी ठोकने का ज्ञान लेके क्या। सबई पुंसांग वरो धर्म जतो भक्ति रधो खजे अहितु की अप्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। धर्म, धर्म किसको कहा जाता है? भाई समझ नहीं, समझ नहीं। ऐसा है। सबई पुंसांग परो धर्म। सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघो खजे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय पाठ नंबर 6। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उनको प्रश्न किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान जो अवतार इस धाम से अपने धाम में चले गए, तो ये धर्म और ज्ञान किधर रख गए? तो वो भागवत में ऐसे बताया जाओ, पुराना को गुना उदित कृष्णे सधाम उपगते। भगवान अपना सधाम में चले जाने के बाद वो धर्म ज्ञान ये श्रीमद् भागवत में छोड़ दिए। तो श्रीमद् भागवत में बताया कि धर्म की सबसे बढ़िया धर्म कौन है? सबई पुंसांग परो धर्म। पर का अर्थ होता है ये प्राकृतिक भौतिक जगत का नहीं। हाँ, जैसे भगवत गीता में 2 शक्तियों के बाद प्रकृति के विषय भगवान सुनाया है। भूमि रप अनल वायु खंगमन बुद्धि रेव। एक भौतिक ये जो प्रकृति मेटीरियल एनर्जी, जिसमें भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकृति है। ये अपरा प्रकृति भगवान सुनाया, अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। और एक प्रकृति है, वो परा प्रकृति।
वो परा प्रकृति कौन है? जीव भूत महाभाव जयदम धार्यते जगत। ये जीवात्मा जैसा हम लोग है, आप है, हम हैं, सब जीवात्मा। मैं भी एक प्रकृति, बाकी परा प्रकृति। तो धर्म भी दुई प्रकार का होता है। जब शरीर का संपर्क से धर्म का जाजन किया जाता है, उसका नाम अपरा धर्म, निकृष्ट। हाँ, और उत्कृष्ट धर्म है पराप्रकृति। निकृष्ट धर्म में प्रवृत्ति, और उत्कृष्ट धर्म में निवृत्ति। प्रवृत्ति रेशांग भूतानाम निवृत्तेस्तु महाफलम। जब तक प्राकृत धर्म में रहेंगे हम लोग, तो ये कर्मकांड का जो विचार है कि हम परिश्रम करके शरीर को खूब सुखी करेंगे, इस जीवन में भी करेंगे, और पुण्य कार्य करके फिर आगे जाके स्वर्गलोक में जाएंगे, उधर भी शरीर को खूब सुखी रखेंगे। ये विचार जो है, ये अपरा धर्म, ये परा धर्म नहीं है। और क्योंकि मैं परा प्रकृति है, इसलिए हमारे लिए वो परा धर्म जो है वही योग्य। ये परा धर्म का विषय है, सूत गोस्वामी बता रहे हैं। सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति व दुख जी। तो परा धर्म क्या चीज है? जिसको जाजन करने से भगवान में भक्ति रुचि होती है, उसका नाम है पराध। हाँ, सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रतु। हाँ, तो भक्ति जो है ये प्राकृत नहीं है, अपराकृत। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताए हैं, मां च व्यभिचारिणी भक्ति योगी न जा सेवते सगुणान समतीत एतान ब्रह्म भूयाय कल्प। भक्ति योग जो है वो ब्रह्म भूमिका में है। मायावादी लोग केवल ब्रह्मानुभव करके वहां सब चीज समाप्त कर देते हैं, परंतु असल में केवल ब्रह्मानुभव होने से ही काम नहीं बनेगा। ब्रह्म कार्य में नियुक्त होना चाहिए। वो ब्रह्म कार्य क्या चीज है, ये भी भगवान भगवद गीता में बताए हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ब्रह्मभूत होने का पश्चात, यानी अहं ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु नहीं है, भूमि रप अनल वायु ये वस्तु मैं नहीं। शरीर जो है हमारा, ये मट्टी, अग्नि, पानी, वायु, आकाश, ये सब चीज से बना हुआ, ये मैं नहीं। हाँ, अहं ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा, आत्म वस्तु है। ये ज्ञान का नाम है ब्रह्म ज्ञान, अहं ब्रह्मास्मि। तो ये ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात क्या क्या उसका लक्षण होता है भगवान बताए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, यदि वास्तविक किसी को ब्रह्मानुभव हुआ तो वो प्रसन्न आत्मा हो जाता। और जब तक भौतिक अनुभव है कि मैं शरीर है, ये शरीर को इस देश में मैं प्राप्त किया है, अतएव हम भारतीय है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम मोटा है, ताजा है। इस शरीर का परिचय अनेक प्रकार है।
कि शरीर का परिचय जब हम छोड़ देता है तब हमारा ब्रह्म ज्ञान होता है। उसका नाम है ब्रह्मभूत। अभी जो हमारा परिस्थिति है वो जीवभूत। तो जीवात्मा असल में भगवान का अंश रूप है। ममैवांश जीवभूत, जीवलोक सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये इंद्रिय और मन को लेकर के हम ये भौतिक जगत में लड़ाई कर रहे हैं सुखी होने के लिए। ये हमारी अवस्था है। तो इससे हमको मुक्ति होनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन का ध्येय वस्तु है और कुछ काम नहीं है। आत्म तत्व जिज्ञासा, जीव से तत्व जिज्ञासा। मनुष्य जीवन में एकमात्र कार्य है कि मैं तात्विक क्या है, ये शरीर है क्या और कुछ है, ब्रह्म वस्तु है। कि ये ज्ञान होने से उसको बोला जाता है ब्रह्मभूत। और वो ज्ञान बहुत जल्दी हो जाती है यदि मांच व्यभिचारिणी भक्ति जोगे न सेवक। यदि शुद्ध भक्ति से भगवान की सेवा किया जाए तो ये जो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये बहुत जल्दी हो जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग परेजिता जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानंच जद अहितकम। भगवान वासुदेव उनके चरण में भक्ति योग से सेवा करने से जनयति आसु वैराग्यम, बहुत जल्दी उसको दुनिया से वैराग्य हो जाता और ज्ञान भी प्राप्त हो जाता। तो इसलिए इधर बता रहे हैं सभी पुंसांग करो धर्म। धर्म अवश्य जाजन करना चाहिए, परंतु वो धर्म जाजन कीजिए जिसका जरिया से आपको अधोक्षज जो भगवान है उसमें भक्ति हो। ये परधर्म। भगवान का नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ होता है जो हमारा जो प्राकृतिक ज्ञान है, इंद्रिय जो ज्ञान है, उसके ऊपर अबांग मनस गोचर और केवल अनुभूति मात्र है। जो भगवान है हमारा सामने ही है, बाकी ये चर्म चक्षु से मैं देख नहीं सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं। तो इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। इन्हें मेंटल स्पेकुलेशन से, मनोधर्म से भगवान क्या चीज है, निराकार है कि आकार है, किस तरह से भगवान का रूप है, किस तरह से कार्यक्रम है, ये सब अनुभव और कुछ धर्म से हो नहीं सकेगा। एकमात्र पराभक्ति से सभी पुंसांग पराधर्म। यानी ये भगवत गीता में भी यही बताया है और श्रीमद् भागवत में यही चीज बता रहे हैं, सभी पुंसांग परो धर्म। और भगवत गीता में भी भगवान स्वयं बता रहे हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। ब्रह्मभूत होने से जब उसको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी फिर उसको कोई आकांक्षा और सोचना नहीं रहेगा। जब तक भौतिक जीवन हमारा रहेगा, जो चीज हमारा पास है नहीं उसके लिए आकांक्षा रहेगी, ये चीज हमको चाहिए। और जो चीज हमारा पास है उसको नष्ट हो जाने से हमारा शोक होगा, सोचना होगा। तो इसका नाम है प्राकृतिक जीवन। भौतिक जीवन सोचना और आकांक्षा। और ब्रह्मभूत हो जाने से ये दो चीज नहीं रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती और समस्त सर्वेषु भूतेषु। उस समय
सब जीवात्मा को एक हम लोग देख सकते हैं। जो पंडिता समदर्शी, जब वास्तविक पंडित हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो सबको जीव आत्मा दर्शन करते हैं। वो ऊपर का जो शरीर है उससे दर्शन नहीं करते कि ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये ब्राह्मण है, ये कुत्ता है। नहीं, वो कुत्ता का शरीर भी नहीं देखता है, वो ब्राह्मण का शरीर भी नहीं देखता है, वो देखता है शुद्ध जीवात्मा, ब्रह्मदर्शन उसका नाम। तो वो अवस्था में हम लोग को जाना चाहिए। इसलिए मनुष्य जीवन है। धर्म जागरण मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, ये मनुष्येतर जीवन में नहीं हो सकेगा। इसलिए मनुष्य के लिए धर्म है, जानवर के लिए धर्म नहीं होता। यदि हम लोग धर्म को छोड़ देता है तो फिर हम लोग जानवर हो जाते हैं। धर्मे न हीना पशुभी समाना। वो जितने धर्म है, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, ऑक्युपेशनल ड्यूटी। ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है। बाकी असल में धर्म का अर्थ होता है कि भगवान से संपर्क। जैसा कानून होता है, हर एक चीज का एक कानून होता है। रास्ता में चलिए, उधर भी कानून है, लेफ्ट कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द राइट। तो कहीं भी जाइए, गवर्नमेंट का अधीन में कानून मान के हमको चलने पड़ता है। तो कोई भी धर्म जागरण कीजिए, उसका अर्थ होता है कि भगवान का संपर्क से चलना। निबंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग मुझसे। तो भगवान का संपर्क नहीं रहता है, उसको धर्म नहीं कहा जाता। वो पशु धर्म। भगवान से संपर्क रख करके जो धर्म जागरण किया जाता है वो असल धर्म है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीत। इसलिए भागवत में आपको सुना रहे हैं कि सभी पुंसांग परो धर्म। अपराकित, प्राकृत नहीं, भौतिक नहीं। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है भगवान की सेवा। भजो सेवाया। तो भक्ति 9 प्रकार के होते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्थम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के भक्ति। ये जैसा आप लोग श्रवण कर रहे हैं ये भी भक्ति है, और मैं कीर्तन कर रहा हूं ये भी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु किस विषय का श्रवण कीर्तन। इधर कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन, उसका नाम है भक्ति। और नहीं तो हम लोग तो श्रवण कीर्तन करता ही है। ये जो इतना हल्ला हो रहा है ये भी एक श्रवण कीर्तन है, पर दूसरी चीज का विषय, वो श्रवण कीर्तन नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यदि विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन हो तो वो भक्ति है। और कोई विषय में श्रवण कीर्तन होने से वो भक्ति नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और श्रवण कीर्तन होने से स्मरण होगा, भगवान का विषय स्मरण होगा। यदि आप मंदिर में गया, ये अर्चन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम। अर्चनम भगवान का मंदिर है, उधर जाके नमस्कार किया, आरती दर्शन किया, कोई घंटा बजाया, कोई थोड़ा नाचा, कीर्तन किया, ये सब अकाउंट में जाता है। सुकृति, सुकृति इसका नाम है सुकृति।
ये सुकृति को संचय करना चाहिए। ये सुकृति संचय करने से जैसा एक एक पाई अब जमा कीजिए, बहुत दिन जमा करते करते देखिएगा 2000-4000 रुपया हो गया, उसमें कुछ काम बनता है। हाँ, एक पाई में नहीं बनता है, ताकि थोड़ा थोड़ा जमा करते जाइए तो एक दिन 2-4 हजार रुपया हो जाएगा और उसमें आपका कुछ काम बन जाए। इसी प्रकार ये जो सुकृति है इसको संचय करते जाएगी। ये जो सुकृति है भक्ति, थोड़ा थोड़ा यदि आप जमा करते जाइएगा तो एक दिन महान भय से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसका उदाहरण स्वरूप ये अजामिल उपाख्यान है कि अजामिल वो ब्राह्मण का लड़का था, फिर असत संगत द्वारा उसका व्यवहार आचार सब दुराचार हो गया, वेश्यासक्त हो गया, चोर हो गया, बदमाश हो गया, गुंडा हो गया। बाकी एक उसको ब्राह्मण का लड़का था, पहले भगवान की सेवा जरूर किया है पिता माता की आज्ञा से, और यौवन में बिगड़ गया, परंतु पूर्व उस सुकृति का वजह से वो जब चोर डाकू हो गया, वेश्यासक्त हो गया, उस समय उनका कई एक लड़का भी पैदा हो गया। तो एक लड़का का, छोटा लड़का, उसका नाम रखा था नारायण, और छोटा लड़का से सभी आसक्त होते हैं। तो वो लड़का को सब समय नारायण बेटा इधर आप बैठो, नारायण बेटा थोड़ा दूध पी लो, नारायण थोड़ा ये खा लो। ये जो नारायण नारायण का नाम लेता था वो उसका अकाउंट में जमा होता था। तो आखिरी में वो जब यमराज का दूत उनको लेने आया, वो डर से भय से वो छोटा लड़का को बुलाया, बेटा नारायण देखो ये लोग कौन आया है हमको लेने। तो नारायण का नाम लेने से वो विष्णु दूत उनको रक्षा करने को आया। ये उपाख्यान श्रीमद् भागवत में है, 6ठ स्कंद में, और सुंदर भारी उपाख्यान है। तो नारायण का नाम लेने से उसका जमदूत का अधिकार नहीं रह गया और वो वैकुंठ में गया। कि स्वल्पम अभी धर्मस्व, वो जो थोड़ा थोड़ा नारायण बताया था उसमें उसका काम बन गया। कलियुग में ये जो भक्ति का मार्ग है, विशेष करके श्रवणम कीर्तनम, ये बड़ा सुप्रशस्त पथ है, आप लोग इसको ग्रहण कीजिए। ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसका प्रचार जो विषय है कि आप अपना अपना स्थान में रहिए। ये बात नहीं है जो हम लोग आपको सबको कहते हैं आप सन्यास बन जाइए, घर छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, नहीं, ये नहीं हम लोग बताते। आप अपना स्थान में रहिए। स्थाने स्थिता सुधिगतान तुनवान मनोभी। हाँ, बाकी आपका जो कान है उसको भगवान की कथा सुनने में लगाइए। ये हम लोग का विचार है, ये शास्त्रीय विचार है। जैसा आप लोग कृपा करके आए हैं कुछ सुनने के लिए, ये काम करते जाए, श्रवणम, और कुछ नहीं, कुछ भी आप नहीं करें। यदि ये सत्संग में जाकर के और जो अनुभवी भक्त हैं उनको मुखारविंद से केवल भगवान की कथा आप सुने, बस आपका जीवन सफल हो जाए, केवल सुनने से। हाँ, सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन दिग्दंतस्थ अवग्राणी विधुनति सुहित सता। शास्त्र में से बताया, यदि आप लोग कृपा करके केवल भगवान की कथा सुनिए, सिन्नतांग सकथा कृष्ण, कृष्ण इतनी कृपामय है जो जब देखता है कि भगवान की कथा आपको सुनने का रुचि हुई है, उसी वक्त भगवान और कृपामय हो जाता है। भगवान तो आपका हृदय में सब बैठे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां
हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबका हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, खाली देखता है कि क्या काम करता है। ये दुनिया में आए भोग करने के लिए, ये तो केवल फंस जाता है, तब इसको छोड़ छाड़ करके हमारा तरफ देखेगा। इसलिए भगवान खुद आते हैं, भीतर में बैठे तो हुए ही है और बाहर में भी आ जाते हैं। भगवान अवतीर्ण हो जाते हैं अवतार ग्रहण कर, यदा यदा ही धर्म सग्लानि भवति भारत। और भगवान अपना प्रतिनिधि को भी भेज देते हैं कि किस तरह से हम लोग भगवान का तरफ देखें। हाँ, हम लोग भगवान को भूल करके समझते हम बड़ा सुखी है, बाकी क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए इसलिए भगवान दुखी है। देखो ये हमको भूल करके ये भौतिक जगत में भोग करने के लिए फंस गया है। मनस्सष्टानि इंद्रियाणि प्रतिदिष्टानि तपस्ति, और इतना तकलीफ उठा रहा है, दिन रात गधे का ऐसा परिश्रम करते हैं एक रोटी के लिए, समझे ना। तो ये हम लोग का काम नहीं है। मनुष्य जीवन जो है शांति से, हाँ, कहीं भी भगवान जो कुछ दिया उसको भोजन करके शांति से समय को केवल भगवत चर्चा में लगाना उचित है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा यही एकमात्र काम है। शास्त्र का निर्देश यही है कि और तुम कुछ चेष्टा न करो। हाँ, ये जो खाने पीने का चेष्टा ये तो जानवर भी करता है। हाँ, शासन कहते हैं अयंग देह नायंग देह निलोके कष्टान कामान अरहति भी भुजान जी। जब तुमको मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर लेकर के इतना तकलीफ उठा के और अपना इंद्रिय तर्पण के लिया और कोई अच्छा काम तो जानते ही नहीं, ये तो सुअर गधा ऐसा करता है, तो मनुष्य भी ऐसा क्यों करे? मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है? तपो दिव्यम, मनुष्य जीवन है तपस्या करने के लिए। यही हमारा भारतीय सभ्यता है। बड़े बड़े राजा अपना राज्य छोड़ कर दे जंगल में जाके तपस्या किया, ये आप लोग सब जानते हैं। महाराज भरत, जिसका नाम से ये भारतवर्ष है, 24 वर्ष उम्र में अपना राज्य और युवती स्त्री रानी बच्चे सब छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए, ऐसा बहुत उदाहरण है। तो मनुष्य जीवन असल में तपस्या करने के लिए है। न तपस्या क्यों किया जाए? हाँ, न तपो दिव्यम पुत्र का जैन शुद्धि तो सत्या। ये जो हमारा सत्ता है ये अभी अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये भौतिक शरीर हमको मिलता है और फिर हमको इसको छोड़ने पड़ता है, फिर और एक भौतिक शरीर लेने पड़ता है। भूतकारुत्या प्रलीयते, ये जो झंझट है ये क्यों हुआ है? ये इसलिए है कि अभी सत्ता शुद्ध नहीं है। तो तपस्या करने से यदि सत्ता शुद्ध हो जाता है तो फिर तो हम ब्रह्म वस्तु है, तो ब्रह्मानंद हमको मिलता है। ये उद्देश्य है मनुष्य जीवन। तपो दिव्यम पुत्र कारेण शुद्धेत सत्ता जेन ब्रह्म सुखम अनंत। हम लोग सुख चाहते हैं, अगर असल सुख है ब्रह्म सुख, वो अनंत है, वो तात्कालिक नहीं है। ये सब शास्त्र में बताया। तो कलियुग में यदि आप ब्रह्मभूत होने को चाहते हैं, बड़ा सरल उपाय, हाँ, वो सरल उपाय है यही जी, भगवान की कथा सुनी। चिन्नदान सबथा कृष्ण, कृष्ण भगवान की कथा मीन्स कृष्ण की कथा। हाँ, कृष्ण की कथा एक तो भगवत गीता है जो कि भगवान स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, वो भी कृष्ण की कथा है। और एक श्रीमद् भागवत है, वो भी कृष्ण की कथा, माने कृष्ण विषय का कथा है। दोनों ही कृष्ण की कथा है। तो कृष्ण कथा सुनी, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत।
ये सुनिए, श्रवणम कीर्तन, सुनने से आपका जीवन सफल होगा। और किधर से सुनिए? शतांग प्रसंगात्मो बीज संविद भवंती नित्यन्न रसायन कथा। कृष्ण कथा वहां से सुनना चाहिए जो कि भगवत भक्त है, जो कि बिजनेस के लिए भगवान की कथा सुनाता है, उनका पास नहीं। जो कि अपना जीवन दिया है भगवान की सेवा के लिए, ऐसे व्यक्ति उसको भागवत कहा जाता है। नित्यंग भागवत सेवा। तो घर घर में आप लोग भागवत सुन सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है यदि आप लोग चाहें। जैसा ये हमारा समाज में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये लोग सब शुद्ध आचरण करते हैं, 4 चीज छोड़ देता है। अवैध स्त्री संग, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं। इसका नाम है अवैध स्त्री संग, इलिसिट सेक्स, ये छोड़ना चाहिए। और मीट ईटिंग, मांस मछली आदि छोड़ देना चाहिए, शुद्ध हो जाए। और नशा भांग, देखिए बालक लोग चाय भी नहीं पीते हैं, बीड़ी भी नहीं पीते, सब छोड़ दिए, ये शुद्ध करते हैं। तपस्या, ये तपस्या है, तपस्या करने से जो सत्ता है शुद्ध हो जाता है। ये सब चीज छोड़ देना चाहिए। 4 प्रकार के जो पाप है, त्रियस्नापान द्यूतो जत्र पाप चतुर्विध, अवैध स्त्री संसर्ग और वृथा हिंसा, पशु हिंसा। जब भगवान हमको इतना चीज दिया है तो फिर हम पशु हिंसा क्यों करते? जहां कुछ मिलता नहीं, डेजर्ट है, उधर कोई अगर पशु को मार के खाया तो उसका उतना पाप नहीं लगता। क्या करे बेचारी, क्या खाए? और भारतवर्ष में और कहीं भी हो, अमेरिका में बहुत खाने का चीज है। जितना चाहे दूध पीजिए, जितना चाहे अनाज लीजिए और खाद्य द्रव्य लीजिए, सब मौजूद है। बाकी स्वभाव हो गया मांस खाने के लिए, हजारों स्लॉटर हाउस सब रखते हैं। तो ये सब पाप कार्य है। ये पाप कार्य चलने से कभी सुखी नहीं होगा। भगवान को तभी मिल सकेगा जब पाप से हम लोग मुक्त हो। जेषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणा ते दंडमः निर्मुक्त भजन्ति मां विरुद्ध। भगवान ऐसे नहीं बोलते तुम्हारा जो खुशी करो, पाप करो और हमको मिल जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। पाप से जो सुनते हैं तो भगवान जो है परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, भगवान परम पवित्र है। तो पवित्र का पास पापी नहीं जा सकता, इसलिए हमको भी पवित्र होने पड़ेगा। तो भगवान खुद भी बताते हैं कि जेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्माणा ते दंडमः निर्मुक्त भजन्ते मां विरब्ध। ये पुण्य कर्म क्या चीज है? सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये जो श्रवण कीर्तन है ये सबसे बढ़िया पुण्य कार्य है और बड़ा सरल है। और आजकल यज्ञोद्दान तपोक्रिया, यज्ञ करना, दान करना और सब तपस्या जंगल में जा करके, हिमालय में, ये तो सब हो नहीं सकेगा। ये कलियुग में असंभव है। इसलिए एकमात्र ये पुण्य कार्य है सिन्नतांग सकथा कृष्ण, भगवान की कथा सुनी, कहीं भी अपना स्थान में रह करके भगवान की कथा सुनी, उसमें आपको पुण्य अर्जन। और अपनी खुशी से ये 4 चीज छोड़ दी, अवैध स्त्री संग, मांसाहार
और नशा भांग और जुआ खेलना, ये 4 चीज छोड़ दीजिए और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये नाम को जपा सब कोई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। घर में रहिए, अपना बिजनेस में रहिए, जो है आप कीजिए। जैसे जैसे आप शुद्ध हो जाएंगे फिर पाप कर्म आपसे छूट जाएगा। सन्नतांग सकता पुण्य सवनती, जितना भगवान का नाम सुनिएगा हरे कृष्ण, उतना ही आप पवित्र होते जाए। चेत दर्पण मान, उतना ही आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा और फिर सब चीज आपको हृदय में प्रकाश होगा। ये कलियुग के लिए विशेष है। हरे नाम ही केवलम, कलो नास्तिव गतिरन्यथा। और सब जो प्रोसेस है कर्म ज्ञान योग आदि, ये सब संभव नहीं है। इसलिए कलियुग के व्यक्ति जितना पतित है, भगवान कृपा करके उससे भी सरल उपाय बता दिया। हरे नाम केवलम, कलो नास्तिव गतिरन्यथा। तो इसके लिए कोई रोक नहीं है, ये केवल हिंदू ही हरे नाम कर सकेंगे और नहीं, हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, सबके लिए अधिकार है। आचंडाल सबके लिए, किरात हूनांद पुलिंद पुष्पसा अबीर संबा जमुना तसार जिनने जो पापा, कोई पापी तापी का विचार नहीं, सब कोई ये भगवान का नाम जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप ये सब पाप कर्म छोड़ दें और भगवान का नाम करें तो फिर आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। किसी का पता सबई पुंसाम करो धर्म जतो भक्ति रधुत कजे, और उसके लाभ क्या होगा? अहि तो की प्रतिहता। अब ये जो भक्ति आप जागरण करेंगे, दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जो इसमें बाधा डाल सकता है, नहीं। किसी अवस्था में ये भगवान का नाम आप श्रवण कर सकते। आप गरीब है, अमीर हो और हिंदू हो, मुसलमान हो, जो कोई हो, कोई बात नहीं, सब कोई भगवान का नाम ग्रहण कर सकते हैं। किसी का लिए रोक नहीं है, सबके लिए खुला है। और जितना आप भगवान का नाम लीजिएगा उतना ही आपका जो चित्त है चेत दर्पण मार्जनम, वो आयनाक का ऐसा है, वो जैसे आयनाक में धूली जम जाने से दिखाई नहीं पड़ती है, उसको साफ करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो तो सच है, उसमें भगवान का नाम से वो विद्वंतस्थ अवध्राणी विधुनति सुहित तथा, भगवान उसको साफ कर देते हैं। फिर आप अपना मुंह देख लीजिए कितना सुंदर है। आपका ये भौतिक शरीर नहीं है, आपका चिन्मय शरीर है, जो कि न हन्नते हन्न माने शरीरे। ये शरीर नष्ट हो जाने से चिन्मय शरीर सब समय रहता है, और वो चिन्मय शरीर से ही आप चिन्मय धाम में जा करके जो चिन्मय भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है उनका साथ एक साथ में रह सकेंगे और सब दिन के लिए भगवान का साथ आनंद कर सकेंगे। आनंदमय अभ्यास, यही हम लोग का प्रचार्य विषय है और बहुत सरल है। आप लोग इसको ग्रहण कीजिए और सुखी होइए। थैंक यू वेरी मच। हरे ये भारत भूमि है परोपकार के लिए, दूसरे को लूटने के लिए नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। और जात जितने जात है भारतवर्ष का बाहर, उसका खाली प्लान होता है दूसरे को किस तरह से लूटा जाए। ये भारत भूमि का वो प्लान नहीं है। भारत भूमि का प्लान है करो परोपकार, क्योंकि दूसरे और जो भारत के बाहर जो सब है कुछ जानते ही नहीं जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको समझाना चाहिए। जो अपना जीवन को सफल करना चाहिए, उसको जीवन सफल करने के लिए तो भगवान स्वयं बता रहे हैं और भगवान के भक्त लोग भी बता रहे हैं
उसको सुना जाए, उसमें आप काम किया जाए, अपना जीवन सफल हुआ, फिर जाके वही बात दूसरे को जाके बताइए, उनको जीवन सफल कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म ही न जा, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पृथ्वीते आछे যত नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मरना। तो कहने का बात तो बहुत है, ताकि आप लोग से निवेदन है, ये जो भारतीय कृष्टि है, ये सब लोग ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है जो हम लोग हवा में बकते हैं। एक्चुअली दे आर एक्सेप्टिंग। इसलिए ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थ यही है, जो भगवान कृष्ण जो बताते हैं वो मैसेज जो है उसको लीजिए, उसको अच्छी तरह से समझिए और दुनिया में प्रचार कीजिए। देखिएगा ये भारत का जो ग्लोरी कितना बढ़ती है। ये आप लोग से निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। दोबारा यदि आपकी इच्छा है आएंगे, क्योंकि यदि मुक्ति का अर्थ होता है, अभी बताया हमने, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति, इसका नाम है मुक्ति। स्वरूप, आपका स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण, भगवान का दास। यदि आप भगवान का दास नहीं रहने को चाहते हैं, फिर मुक्ति से लौट के इधर आने पड़ेगा, माया का दास होने पड़ेगा। दास सब रहे, दासगिरी छूटेगा नहीं। बाकी अब जब रिवेल करेंगे, जब भगवान का दास नहीं होंगे, तो माया का दास होइए। ये बात मिल जाने से क्या होगा? वो तो साजुज्य मुक्ति है। साजुज्य मुक्ति 5 प्रकार का होता है। साजुज्य, सालोक्य, सारूप्य, शास्त्री, सामीप्य। तो वो जो मिल जाने वाले ब्रह्म ज्योति में मिलना, वो ब्रह्म ज्योति में मिलने से वो परम मुक्ति नहीं है, उससे फिर लौट के आते हैं। इस शास्त्र में है जिन्नेर बिंदाख विमुक्त मानिना, वो भगवान ब्रह्म ज्योति से मिलने से वो समझता है वह मुक्त हो गया, विमुक्त माने। तयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है, और क्योंकि भगवान का रूप का उसका अनुभव नहीं है, इसलिए बुद्धि उसका अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं है। इसलिए आरुध्य कृच्छे न परम पदंग ततः पतंती अध, वो अनेक कृच्छ साधना करके जो ब्रह्म ज्योति से मिलता है, फिर उधर से गिर जाता, उधर से गिर जाता। और भगवान का पास जाने से भगवान के साथ रहना, खाना पीना, चलना फिरना, उसको फिर आने को नहीं पड़ता। जदगत्याना निवर्तन्ते तद धाम परमो, और ये धाम से उसको आने पड़ता है फिर, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में आनंद तो मिलता नहीं। जैसा आकाश में एरोप्लेन में लेकर के जाइए, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रह सकेंगे। कहाँ एरोप्लेन फिर नीचे आएगा, उसके लिए व्यग्र हो जाएगी। इसी प्रकार बहुत ऊंचे ब्रह्म ज्योति में जाने से केवल उसको सीधा सत उसको उपलब्धि हुआ और आनंद नहीं हुआ। वो आनंद के लिए फिर यही भौतिक आनंद में आने पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े सन्यासी लोग जो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जगत को छोड़ देता है, कुछ दिन बाद फिर ये जगत का काम में अस्पताल खोलने के लिए और कुछ काम करने, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए आते हैं, क्योंकि उधर मिला नहीं कुछ। ये बात आरुध्य कृच्छे न परम पदंग ततः पतंती अध, फिर वही भौतिक कार्य में लगा देते हैं, क्योंकि उधर ब्रह्म का कुछ आनंद नहीं मिला। इसलिए आपको भगवत धाम में जाना चाहिए। जदगत्ता ना निवर्तन्ते तद धाम परम, उधर जाना चाहिए, तब मुक्ति पूर्ण होता है। हाँ, वैकुंठ में जाए, वृंदावन में जाए, तो फिर उसका आने नहीं पड़े।
तपस्या का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। तपस्या ब्रह्मचर्य न, ये जो तपस्या है तो ब्रह्मचारी से ही शुरू होती है। तो अगर ब्रह्मचर्य न करें वो स्टेडी नहीं रह सकेगा। कोई भी तपस्या कीजिए, ज्ञान योग ध्यान, उसमें ब्रह्मचर्य चाहिए। ये नहीं है जो अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन में करेंगे और बड़े बड़े जोगी भी बन जाएंगे, ये संभव नहीं। ये सब संभव नहीं। इसलिए तपसा ब्रह्मचर्य न, इस शास्त्र में लिखा है तपसा का अर्थ होता है ब्रह्मचारी से शुरू होती है तपस्या। जगत दान तपक्रिया न त्याज्यम। भगवान कहते हैं जगत दान और तपस्या इसको छोड़ना नहीं है। हम संन्यास लिया है और ये नहीं है कि ये भी छोड़ दें। घर दौड़ तो छोड़ दिया, ठीक है, ताकि तपस्या भी छोड़ दें और दान भी छोड़ दें, जगत दान यज्ञ भी छोड़ दें, ये नहीं, ये छोड़ने का नहीं है। जगत दान तपो क्रिया पावनानी मनीषिना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जो ब्रह्मचर्य नियम है, यो आध्यात्मिक शक्ति उसमें बहुत जल्दी बढ़ती है, इसलिए ब्रह्मचर्य का जोड़। जैसा आपको घर में ये सभी मकान है, ताकि पखाना में नहीं जाना चाहिए। मकान पखाना भी है तो उधर नहीं जाना चाहिए। जहां देवता की मूर्ति है उधर जाना चाहिए। आपको समझ में आया? सर्व सभी हमारा मकान है तो पखाना में हम रहेंगे, ये कोई विचार है? हाँ, जाना पड़ता है, भग जाना पड़ता है जल्दी। और आपका ऐसी मत है जो पखाना में ही रहेंगे तो रहिए, कौन मना कर। आप लोग आइए ना, आपके लिए इतना बड़ा भारी भारी मकान बना है, आप आइए रहिए। आप आते नहीं कर। इतना तो झगड़ा करके जो हरे कृष्ण लैंड हम लोग बना रहे हैं, क्या हमारा रहने के लिए, हमारा रहने की जगह नहीं है? आप लोग के लिए बना रहे हैं, आप लोग क्यों आते नहीं? जद जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरे जना सजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो आप लोग सब श्रेष्ठ व्यक्ति है बम्बई का, आप लोग आइए, देखिए, रहिए। इतना किताब हम लिखे हैं उसको सब पढ़िए, समझिए, तभी तो काम चलेगा। आप लोग दूर में रहेंगे तो कैसे चलेगा? Yeah. In your first chapter of Bhagavad Gita, I read that we have to detach ourselves from worldly life and then surrender to God. Instead of concentrating on the emphasis to detach, should we just concentrate on the Almighty? Then with His grace, the attraction towards worldly life will die out. Is that not enough? Or should we constantly struggle to kill the attachment with the Maya? Attachment and detachment, parang dishta nivartate. Unless you get a better thing, you cannot give up your attachment for the inferior thing. Therefore, you have to increase your devotion to Krishna. Then you will be able to Vasudevi Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Asu Vairagyam. As soon as you
engage your devotional service, devotional life to Vasudeva, janayati asu vairagam, very soon you will be detached with this material world. Bhakti parasanubhava virakti annatasya. The vivid example is yourself. You are American, your father is a great industrialist. How you have been able to give up everything and join Krishna consciousness movement? This is attachment and detachment. If you become attached to Krishna, then naturally you will be detached to material things. The more you become attached to Krishna, the more you become detached. That is the test. Just like if you are hungry, the more you eat, the hunger is finished. Similarly, we have got this tendency for enjoying this material world. The more we become attached to Krishna, then we forget this material.